આયોજિત આ વેબિનારમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। સરકારી અત્રેના વેબિનારમાં ઉપસ્થિત સરકારી કોલેજના આચાર્ય ડોક્ટર એસ સર સાહેબ, વિભાગના અધ્યક્ષ સુનિલભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ, આ વેબિનારમાં આપણને જેમનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે, આ વેબિનારના મુખ્ય વક્તા શ્રી ડોક્ટર ભાવપ્રકાશભાઈ ગાંધી સાહેબ, આ વેબિનારમાં જોડાયેલ તમામ કોલેજના અધ્યાપક શ્રીઓ, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો સમગ્રનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌ જાણો છો છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોરોના વાયરસને કારણે સમગ્ર વિશ્વ એ થંભી ગયું છે। આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે બરાબર યુનિવર્સિટી કક્ષાની પરીક્ષાઓનો સમય હતો, એ દરમિયાન જ આ કોરોનાના કારણે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ અને એને કારણે શિક્ષણ તંત્ર ઉપર એની માઠી અસર થઈ। પરંતુ આપણે શિક્ષક તરીકેની એક ફરજ છે કે આપણા આ લોકડાઉનના સમયમાં પણ આપણી કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓને સતત જ્ઞાન મળી રહે, વિદ્યાર્થીઓને સતત માર્ગદર્શન મળી રહે, એ માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા, ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરી દ્વારા સઘન પ્રયાસો કરવામાં આવે છે। આજે રાજ્યની વિવિધ કોલેજોમાં વેબિનાર મારફત જુદા જુદા વિષયોનું જ્ઞાન પીરસવામાં આવે છે। આજે એ જ તબક્કે અમારી કોલેજમાં આ વેબિનારનું આયોજન થયું છે। પ્રજાપતિ સાહેબ અને અમારી કોલેજના તમામ અધ્યાપક શ્રીઓએ સઘન મહેનત કરી અને આ વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે, એ બદલ એ સૌનો પણ હું આભાર માનું છું। આજે આપણી વચ્ચે આ વેબિનારમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે આદરણીય શ્રી ભાવપ્રકાશભાઈ ગાંધી સાહેબ ઉપસ્થિત છે। લગભગ સંસ્કૃત સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલા આપણે સૌ એમને જાણીએ છીએ। ભાવપ્રકાશભાઈ ગાંધીનું વ્યક્તિત્વ બહુ જ અનેરું છે। ગુજરાતના જે કહી શકાય કે અગ્રગણ્ય અધ્યાપકોમાં ના એ એક છે। સતત ક્રિએટિવ, સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા અધ્યાપકોમાંના એક છે। આમ તો એમણે પોતાનું સમગ્ર શૈક્ષણિક કારકિર્દી અથવા તો શિક્ષણ કાર્ય છે એ ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનઉ, હરિદ્વાર વગેરે સ્થળોએથી પ્રાપ્ત કર્યું છે। એમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ સંસ્કૃત માધ્યમમાં મેળવ્યું, આ ઉપરાંત એમફિલ, પીએચડી નો અભ્યાસ પણ એમણે કર્યો છે। કર્મફળ જેવા વિષય ઉપર એમણે પીએચડી કરેલું છે, એ વસ્તુ જ આપણને જોવા મળે છે કે એમનો અંત છે એ એમના વિષયમાં જોવા મળે છે। આ ઉપરાંત બહુ સુંદર વાત તો એ છે કે 2014માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર પણ એમને પ્રાપ્ત થયો છે। આપણે આ તબક્કે એમને ફરીથી પાછા અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। આ ઉપરાંત એ પીએચડી ના ગાઈડ તરીકે પણ પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે। હાલ જુદી જુદી યુનિવર્સિટીમાં 4 વિદ્યાર્થીઓ એમના માર્ગદર્શન નીચે પીએચડી નો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। સંસ્કૃત વિષયમાં એમની અભ્યાસ નિષ્ઠા એ પણ આપણને બતાવે છે કે સંસ્કૃત સંભાષણ ગુજરાતની જુદી જુદી શાળાઓ, કોલેજોમાં જઈ અને સંસ્કૃત ભાષા પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃતિ આવે, સંસ્કૃત ભાષા પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રેમ જાગૃત થાય, એ માટે સંસ્કૃત સંભાષણના વર્ગો એ ચલાવે છે। આજે આપણને એ ખૂબ સુંદર વ્યાખ્યાન આપવાના છે। એમના વ્યાખ્યાનનો વિષય છે નીતિ શતકમાં જીવન મૂલ્યો। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભર્તૃહરિએ 3 શતકની રચના કરી હતી, શૃંગાર શતક, નીતિ શતક અને વૈરાગ્ય શતક। આ શતક શબ્દ જ આપણને સૂચવે છે કે એમના ત્રણેય ગ્રંથોમાં 100 શ્લોકો આવેલા છે। હવે આ જે શતક છે નીતિ શતક, એમાં નીતિ વિષયક વાત થયેલી આપણને જોવા મળે છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રામાયણ હોય, મહાભારત હોય, આપણા પ્રાચીન સાહિત્યમાં નીતિ વિષયક વાતો ખૂબ જ થયેલી જોવા મળે છે। હમણાં જ આપણે મહાભારતની સિરિયલ જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે અનુભવ્યું કે વિદુર નીતિ એ આપણને સ્પર્શી જાય છે। નીતિ એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે સારે રસ્તે ચાલવા માટેના એક પ્રયાસો, સારે રસ્તે ચાલવા માટેની એક ગાઈડલાઈન, એને આપણે નીતિ કહેવી હોય તો કહી શકીએ। તો આવા નીતિ વિષયક જે શતક રચાયું છે, નીતિ શતક, એમાં જે જીવન મૂલ્યો છે એની વાત કરવા માટે આજે ભાવપ્રકાશભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। ફરી વખત અમારી કોલેજ વતીથી સંસ્કૃત વિભાગ તરફથી એમને આવકારું છું અને એમને હવે વિનંતી કરીશ કે
નીતિ શતક વિશે પોતાની વાત કરવા ઉપસ્થિત ખૂબ આભાર. નમસ્તે. શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત સરકારના પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારી જુનિયર કોલેજ બાયડ સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રી પુષ્પભાઈ પ્રજાપતિ દ્વારા આયોજિત આજના વેબિનારમાં 573 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને રિસર્ચ સ્કોલર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ખૂબ જ ઉમદા પ્રતિસાદ આપેલ છે. અમારો ઉત્સાહ વધારે છે. દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને કોલેજ પરિવાર વતી આપ સૌને આજના આ વેબિનારની અંદર આવકારું છું. ભવિષ્યની અંદર પણ કોલેજ દ્વારા 5 જૂન સુધીમાં 4 જેવા નવા વેબિનારનું આયોજન કરેલું છે. આવો જ લોકોએ પ્રતિસાદ તમારું શું કર્યું વિડિયો જોવો હવે આજના વેબિનારના જે મુખ્ય વક્તા મારા પરમ સ્નેહી ભાવપ્રકાશ ગંજીભાઈને આવકારું છું. બધાયને આવે છે એટલે ઘણા આવે છે એમને એ પોતપોતાના આવે છે ને વેબિનાર શરૂ કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું. પોતપોતાના એટલે start with you. So Zoom to access you can from settings privacy can સૌ પ્રતિભાગીઓને સૌથી પહેલા વિનંતી છે કે આપનો અવાજ કોઈનો અવાજ મને આવી રહ્યો છે. મ્યુટ કરી દો. હા, આપના માઇકને મ્યુટ કરશો જેથી આપણે સાંભળી શકીએ અને પછી આપણે પ્રશ્નોત્તરી અથવા ચર્ચાનું સત્ર પણ થોડુંક રાખ્યો છે જેથી આપને પણ આ વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ વાત રજૂ કરવી હોય તો આપને પણ અવસર પ્રાપ્ત થશે. ઓમ યો ભૂતમ ચ ભવ્યમ ચ સર્વમ યશ્ચાધિતિષ્ઠતિ સ્વર્યસ્ય ચ કેવલમ તસ્મૈ જ્યેષ્ઠાય બ્રહ્મણે નમઃ. તસ્મૈ જ્યેષ્ઠાય બ્રહ્મણે નમઃ. ઓમ દિક્કાલાદ્યનવચ્છિન્નાનંતચિન્માત્રમૂર્તયે સ્વાનુભૂત્યેકસારાય નમઃ શાંતાય તેજસે. नमः शांताय तेजसे. सरकारी विनयन कॉलेज बायड़ के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान सत्र कहिए या ऑनलाइन वेबिनार कहिए, उसमें आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. सबसे पहले कॉलेज के यशस्वी और सतत कर्मयोगी कर्मशील ऐसे प्रिंसिपल श्री शैलेश भाई भावसार जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करता हूं कि उनकी जो शिक्षण के लिए जो उनका समर्पण है, उनकी जो निष्ठा है, वो हमें कई सालों से और कई बार जब मैंने सरकारी कॉलेज का इंचार्ज प्रिंसिपल का भी कार्यभार ग्रहण किया था, उस समय बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है. ऐसे हमारे प्रेरणाप्रद मार्गदर्शक आदरणीय भावसार जी का मैं सबसे पहले अभिवादन और अभिनंदन करता हूं. आईसीयू जो हमारा जो ये जिसके तहत IQSC के तहत जो ये व्याख्यान आयोजित किया गया है, उसके चेयरमैन और गुजराती भाषा के प्रखर साहित्यिक जो हमेशा गुजराती साहित्य के क्षेत्र में उनका एक अलग चिंतन रहता है, ऐसे आदरणीय श्री विपिन भाई उपाध्याय जी का भी मैं अभिवादन और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी इस जो कोरोना संकट काल है, कोरोना की महामारी है, उसमें भी कुछ सकारात्मक चिंतन करने का सभी को अवसर दिया है और आप उनके माध्यम से ही सुन रहे हैं, तो आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं. तीसरा जो हमें विशेष सुनील भाई प्रजापति जो वहाँ के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, मेरे परम सुहृद हैं, मेरे अनुज हैं,
और हमेशा उनसे जब बात होती है तो कुछ नया चिंतन, नया काम करने का उत्साह उनके माध्यम से प्राप्त होता है। ये वेबिनार की संकल्पना या इसके पीछे जो परोक्ष रूप से जिनकी सतत कार्यनिष्ठा यहाँ पर प्रतिभासित हो रही है, ऐसे सुनील प्रजापति जी को भी मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा विषय है महानुभाव नीति शतक में जीवन मूल्य। आप सभी को ज्ञात है नीति शतक एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनसे हमारा जुड़ाव बना हुआ है। अभ्यास क्रम के संदर्भ में देखें तो प्रायः सभी संस्कृत विश्वविद्यालय हों, कॉलेजेस हों, विश्वविद्यालय हों, वहाँ कॉलेजेस हों, वहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, मुख्य विषय के रूप में या गौण विषय के रूप में किसी न किसी रूप में नीति शतक एक अभिन्न पाठ्यक्रम का अंग बन चुका है। यह स्वयं उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी जीवंतता और उसकी प्रस्तुतता प्रकट करता है। नीति शतक, शतक शब्द ही स्वयं उसके श्लोकों को प्रतिपादित करता है कि यहाँ पर 100 श्लोक है। वैसे तो श्लोकों के संदर्भ में काफी विद्वानों में व्युत्पत्ति मिलती है, कहीं 100 श्लोक, कम से कम 100 श्लोक तो हैं, कहीं 101, कहीं 109, कहीं 110, कहीं 111, तो कहीं 120 और 121, इस तरह की संख्या हमें एक नीति शतक को ऊपर दृष्टि देखने से, ऊपर दृष्टि डालने से नीति शतक पर हमें यह पता चलता है। मैं हिंदी भाषा में यह व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका कारण यह है कि गुजराती में ही करना चाह रहा था, लेकिन इस वेबिनार में देश भर के काफी लोग जुड़े हुए हैं। सभी के अवबोध के हेतु, सरलतया सबको ज्ञान हो, इस कारण से मैं हिंदी भाषा को करके अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। उड़ीसा से, दिल्ली से, राजस्थान से और अन्य बहुत बहुविध प्रदेशों से इसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हिंदी में इसलिए मैं अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहा हूं। नीति शतक है वो प्रासंगिक ग्रंथ है, और जो प्रासंगिक होता है उसको हम काल में बांध नहीं सकते। कहते हैं ना काला बाधित, त्रिकाला बाधित यह एक ग्रंथ है। आज से लगभग 700 ईस्वीय वर्ष है इसका जो समय निर्धारित करते हैं विद्वान लोग, तो आज से 1300 वर्ष पहले नीति शतक की रचना की गई। लेकिन आज भी आप इसके यदि श्लोकों को पढ़ना चाहेंगे, पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो अपने जीवन से कहीं ना कहीं आप इन श्लोकों का संबंध जोड़ पाएंगे। विषय बहुत ही सरल है, लेकिन सरल विषय पर बोलना, सहजतया बोलना उतना ही कठिन होता है। मेरे लिए भी वह कठिनता है कि प्रायः सभी नीति शतक से सुपरिचित हैं। कुछ ऐसे तत्व आपके लिए मैं प्रस्तुत कर पाऊं जिससे आपको एक नई दिशा, एक नया दर्शन, एक नई दृष्टिकोण और एक नया चिंतन आपको प्राप्त हो। इस प्रयत्न से मैंने थोड़ा अभ्यास, थोड़ा चिंतन मनन किया है, वो जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नीति शतक के रचयिता हैं राजर्षि भर्तृहरि। राजर्षि भर्तृहरि को शायद सभी लोग जानते हैं, किंवदंतियों के माध्यम से उनका परिचय है, अथवा तो किसी न किसी रूप में भर्तृहरि से जुड़े हुए हैं। भर्तृहरि के, जैसे उपाध्याय सर ने बताया कि भर्तृहरि के 3 शतक, और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वाक्यपदीय भी उनकी ही देन है, क्योंकि हम उनके 3 शतक देखते हैं तो 3 शतकों की धारा है, उनका चिंतन है, वो अलग अलग दिशा में जा रहा है। इसलिए हो सकता है क्योंकि वो राजा भी रहे और ऋषि भी हैं,
और ऋषि तो दर्शन करते हैं, तो उन्होंने व्याकरण तो का बेटा भी आओ ना फिर से एक बोलू ये विशेष खाली देख दर्शन है प्राप्त किया होगा। लैपटॉप में देख है कृपया अपनी आवाज को बंद करिए। लैपटॉप में हेलो वो बोलू ये मार जी, खाली कर आपकी आवाज आ रही है अभी भी किसी की। आपसे कृपया विनंती है, अपने आवाज को बंद करिए कृपया। अरे भाई आवाज बंद करो, वो सर जी बोल रहे हैं तो। और यह जीवन मूल्य जो विषय है वो सभी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के गवेषक, संस्कृत के प्राध्यापकों के लिए यह विषय उपयोगी है और विषयों के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी विषयों के लिए और बच्चों के लिए भी। मैं तो कहता हूँ बालकों से लेकर वृद्ध तक सभी के लिए यह नीति शतक ग्रंथ है, वह अत्यंत उपकारी है। नीति शतक की रचना का क्रम हम ऐसे लेते हैं कि पहले नीति शतक, फिर श्रृंगार शतक और फिर वैराग्य शतक। लेकिन हम इसको उस दृष्टि से देखें तो पहले श्रृंगार शतक रहा होगा, उसके बाद नीति शतक, या उसके बाद वैराग्य शतक और उसके बाद नीति शतक। इस तरह का क्रम हम निर्धारित कर सकते हैं। भर्तृहरि जी के विषय में किंवदंती से आप सुपरिचित है कि उनकी एक रानी थी पिंगला, उनकी महारानी पिंगला थी, जिनसे वह अत्यंत प्रेम और स्नेह रखते थे और अपने राज्य को भी उन्होंने देखना छोड़ दिया था, इतने प्रेमासक्त हुए थे। और फिर उनके जो भाई विक्रमादित्य रहे, उनको भी इस चीज से आपत्ति थी, लेकिन जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगती है तब तक मनुष्य उस जीवन से बोध नहीं ग्रहण करता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी कोई आश्चर्यजनक घटना घटती है जिसके द्वारा वे पुरुष से पुरुषोत्तम, मानव से महामानव तक की यात्रा वह तय करते हैं। ऐसा ही कुछ महाराजा भर्तृहरि के साथ हुआ था। और दो किंवदंतियों के माध्यम से हम भर्तृहरि को ज्यादा परिचित कर पा रहे हैं। पहला तो कि उनको एक फल प्राप्त हुआ था, अमर फल, जिनको उन्होंने अपनी पत्नी को प्रदान किया, जिनसे प्रेम करते थे। और वो अमर फल खाने के बाद वह जो खाता था वो अमर हो जाता था, तो वो पत्नी से प्रेम करते थे। उन्होंने पत्नी को वह अमर फल दिया। उन्होंने किसी सेना के अधिकारी जिनसे वह आसक्ति रखती थी, उन्होंने उनको दिया। उन्होंने किसी वैश्या को प्रदान किया और वैश्या ने सोचा कि मेरा जीवन तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यदि राजा को यह फल प्राप्त हो तो यह ज्यादा उपयोगी होगा, तो वो वैश्या राजा के पास देती है। इस तरह याम चिंतयामि सततम मयिसा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम स जनोन्य सक्ता अस्मत् कृते तु परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस श्लोक में जो उन्होंने धिक्ताम, उस पिंगला रानी को भी धिक्कार किया है, तम उसके जो प्रेमी हैं सेनाध्यक्ष, उनको भी उन्होंने धिक्कार दिया है। तम धिक्ताम च तम च मदनम च, और कामदेव को धिक्कार देते हैं। इमाम उस वैश्या को भी धिक्कार करते हैं, और माम स्वयं को धिक्कृत करते हुए वो राज्य छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरी ऐसी घटना है कि उन्होंने किसी शिकारी को मृग का वध करते देखा, तो मृग का वध हुआ, उसी समय शिकारी को किसी सांप ने काट लिया। तो मृग जो उनकी पत्नी थी, मृग पत्नी थी, मृगिणी थी, वह उनके शोक में अपने प्राण त्याग कर देती है। और इस तरफ व्याध की जो पत्नी होती है वो भी उनके विरह में प्राण त्याग कर देती है। यह दृश्य उनको बहुत आहत करता है, करुणता से भर देता है उनके हृदय को। और वे अपने पत्नी को खून से लथपथ कुछ कपड़े भिजवाते हैं और कहते हैं कि आपके पतिदेव नहीं रहे हैं। तो उसी विरह में पिंगला भी प्राण त्याग कर देती है। फिर उनको अपने भूल का बोध होता है, भूल का एहसास होता है, और वो वन के लिए निकल पड़ते हैं। ये दो किंवदंतियां हैं जो उनके एक राजा के उनके अनुभव
के आधार पर उन्होंने बहुत सारी बातें इस नीति शतक में कही हैं। और जब वो वनवास में गए तो ऋषि भी हुए, तो राजर्षि हम इनको कहते हैं। तो ऋषि के स्वरूप में भी उन्होंने जो चिंतन, उनका जो जीवन की एक उनको दर्शन प्राप्त हुआ, वो भी उन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक, वाक्यपदीयम आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया है और आज के समय में पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। आज आप सभी लोग कोरोना के कारण, कोरोना की महामारी के कारण किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग हैं और उस समय में कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह हम उक्ति सुनते आ रहे हैं, तो समाज से किसी न किसी माध्यम से जुड़ना चाहता है और कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अभी आवश्यकता हुई कि मनुष्य कितने दिन तक अपने घर में रहे, कितना समय व्यतीत कर पाए, उसके लिए उन्होंने विकल्प ढूंढने शुरू किए और कुछ दिनों के बाद ही ऑनलाइन क्विज चल रहे हैं, ऑनलाइन व्याख्यान मालाएं हो रही हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स आयोजित हो रहे हैं। इस प्रकार के अनेकविध कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी, आकाशवाणी सभा जैसे भी कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि की जा रही है। तो ये भी एक नीति से आप जुड़े हुए हैं, नैतिक ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में जो अच्छी नीति है, तो आप ऐसे अच्छे उपक्रमों से जुड़े रहेंगे जिससे हमारे इस जो समय है, इसका समय का सदुपयोग होगा। यदि आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। और विद्वान का एक बहुत सुंदर पर्याय शब्द है बहुश्रुत। बहुश्रुत हम विद्वान के संबंध में सुनते हैं, तो बहुश्रुत बनने का एक अवसर हमें यह एक समय दे रहा है, साथ में चिंतन करने का भी समय दे रहा है। आप परिवार के समय बहुत अच्छा समय बिताइए, लेकिन कुछ समय आप ऐसे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, अच्छे सेमिनार्स या वेबिनार्स हैं उनसे जुड़िए और उसके साथ कुछ अच्छा अपना भी चिंतन करते रहिए। यह एक हमें समझना है और यही जीवन मूल्य है, वो नीति ग्रंथों में प्राप्त हमें होता है। बाह्य स्वरूप, मैं 3 दृष्टि से इस नीति शतक को आपको चाह रहा हूं। हेलो, हाँ जी, आप सुन रहे हैं मेरे? हाँ जी, हाँ, 3 दृष्टि से मैं आपको नीति शतक के संदर्भ में थोड़ा सा परिचय और थोड़ी सी दृष्टिपात करने का प्रयत्न कर रहा हूं आपका। पहला एक बाह्य स्वरूप है जिससे सभी लोग परिचित है। नीति शतक इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि उसके नीति श्लोक हैं, शायद हमें भी लगभग 30-40 उसके सुभाषित याद होंगे, या उसके भाव को या उसके अर्थ को हम किसी अन्य भाषा के माध्यम से भी हम जान पा रहे हैं। काका कालेलकर जी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा कुछ अनुवाद, इस तरह का काव्यानुवाद भी इसका प्रस्तुत किया है जहां तक मुझे ज्ञात है। तो अनेक भाषाओं में यह नीति शतक आपको मिलेगा। उसका स्वरूप भी आपको पता है कि 100 श्लोक हैं और अलग अलग विषय से आधारित इसमें बातें कही गई हैं। उसका भी थोड़ा रस दर्शन हम आगे करने जा रहे हैं। दूसरा जो हमें, हाँ जी, सुन रहे हैं मुझे? हाँ, दूसरा जो मेरा हाँ जी, दूसरा जो इसका है वो उसका जो आंतरिक स्वरूप है। ऊपर दृष्टि से देखते हुए हमें सुभाषित कहीं ना कहीं सुने, कहीं ना कहीं हमें पढ़े, कहीं ना कहीं बोले जाते हैं हमारे के माध्यम से। तो ये एक इसका दूसरा स्वरूप है जिससे हम लगभग सभी लोग सुपरिचित हैं। लेकिन इसका जो तीसरा है कि सुभाषितों के माध्यम से हमें एक जीवन की नई दृष्टि प्राप्त करनी है। यह चिंतन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तीसरा इसका जो जीवन दर्शन है वह हमें जब पता चल जाएगा तो जो नीति शतक है वो एक पुस्तकस्थ नहीं हो जाएगा,
वह कंठस्थ नहीं हो जाएगा, लेकिन वो हृदयंगम हो जाएगा, वो आचरणबद्ध हो जाएगा और हमारी क्रिया में उसका कहीं ना कहीं उपयोग उसका दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यह एक जीवन दृष्टि महत्वपूर्ण है। दो दृष्टियों पर मैं विशेष प्रकाश नहीं करूंगा क्योंकि आप सब नीति शतक से अच्छी तरह से परिचित है। कुछ विद्यार्थी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान भी प्रस्तुत किया है। जैसे पहला स्वरूप मैंने कहा, उस संदर्भ में कहें तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, इस प्रकार काव्य के दो भेद होते हैं। उसमें भी गद्य, पद्य और चंपू काव्य होते हैं। गद्य में कथा, आख्यायिका, उपन्यास आदि उसके भेद हैं। पद्य काव्य के भेद हैं महाकाव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। बहुत सारे लोग गीति काव्य के अंदर ही, खंड काव्य के अंदर ही मुक्तक काव्यों का समावेश कर लेते हैं, लेकिन हम अलग भी रख सकते हैं, मुक्तक काव्य भी रख सकते हैं। उसमें कुछ स्तोत्र साहित्य आ जाता है, कुछ ये नीति काव्य आ जाता है और कुछ श्रृंगारिक काव्य आ जाता है। इस तरह के इस काव्य स्वरूप के संदर्भ में यह एक नीति काव्य या मुक्तक काव्य के रूप में हम इसको मान सकते हैं। नीति शतक की तरह अन्य भी शतक काव्य संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। मैंने सूची एकत्रित करने का प्रयत्न किया था पहले, तो मुझे लगभग 40 से 50 नीति शास्त्र के ग्रंथ या उससे जुड़े हुए सुभाषितों से संबद्ध ग्रंथों की एक सूची मेरे पास थी। तो उसमें सभी बहुत सुंदर सुभाषित वाले हैं, लेकिन नीति जो शतक है वो क्यों हमारे जीवन के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसका जो मुख्य कारण है वह है नीति शतक का एक तो सौंदर्य, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से नीति शतक है वो हमें कांता सम्मित तयोपदेश देता है। प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित उपदेश तो आपको मिल जाएंगे, ये सुहृद सम्मित उपदेश भी है, लेकिन उससे ज्यादा कांता सम्मित उपदेश यह प्रदान करता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और सुंदर मन को हरने वाले वचन दुर्लभ होते हैं, लेकिन आप नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको हितकारी वचन भी मिल जाएंगे और आपके मधुर वचन भी आपको कड़वे ना लगेंगे, क्योंकि अधिकांश जो हम सत्य बात बोलते हैं वो कड़वी लगती है, लेकिन सुभाषितों का यह महात्म्य है या नीति शतक का यह महात्म्य है कि यहाँ पर ये जो श्लोक प्रदत्त हैं वो हमें कांता सम्मित स्नेह से हमें उस शतक के कोई भी मुक्तक के साथ जोड़ देते हैं और हमारे जीवन का किसी न किसी रूप में विकास होता जाता है। तो यह एक नीति शतक का है। दूसरे शतकों में भी बहुत सुंदर है, लेकिन अनुष्टुप छंद, कुछ एक छंद ही वहां पर ज्यादातर प्रयुक्त हैं, छंदों का वैविध्य नहीं है। तो क्योंकि यह तो गीति काव्य है, गीति काव्य के अंदर आता है तो गेयता भी होनी चाहिए। तो नीति शतक के जो श्लोक हैं वो लोक में गेय दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। हम इसको गान के माध्यम से भी यदि हम प्रस्तुत करते हैं, गाते हैं, तो भी अपने चित्त को आह्लाद प्राप्त होता है। और दूसरा जो काव्य का जो एक प्रयोजन था, व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान, वह महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम लौकिक व्यवहारों को अनुसरते हैं तो वहां पर स्खलन या फिसलने की आवश्यकता, फिसलने की वहां पर संभावनाएं होती हैं। लेकिन यदि हम अच्छे ग्रंथों को, अच्छे साहित्य को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में फिसलने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए यह जो नीति शतक है यह हमें बहुत व्यवहार ज्ञान, वो भी बहुत स्नेह के साथ प्रदान करता है। एक एक सुभाषित के पीछे एक एक कथा को आप जोड़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा विषय की तरफ आता हूं कि नीति शतक में जीवन मूल्य। अध्यापक मित्र, आप सब
जानते होंगे कि नीति शब्द भी बहुत विख्यात है और मूल्य शब्द भी विख्यात है। दोनों के मध्य में कोई ना कोई संबंध है, फिर भी दोनों के बीच में एक पार्थक्य भी है, यह भी हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले नीति शब्द है। नीति शब्द का अर्थ होता है नयनात् नीति ही, नयति इति नीति ही, जो हमें ले जाती है, हमें जो किसी भी मार्ग पर हमें ले जाती है वह नीति है, हमें अभिमुख करती है वह नीति है। जैसे कृति है, जो काव्य है उसको हम कृति कहते हैं, किया गया हमें उस तरफ अभिमुख करता है तो वह कृति है। तो नीति, जो लिया गया, जो लेने योग्य वस्तु है, वह हमें एक मार्गदर्शन देता है, वह नीति है। नीति जो है उसको हम हमेशा नीति को अच्छे संदर्भ में ले, ऐसा भी नहीं है। चोर की भी एक नीति होती है, लेकिन उसकी नीति कैसी होती है कि मुझे किसी के धन को चुराना है और उस चुराए हुए धन को जितने भी चोर हैं उनमें परस्पर बांटना है। तो वो भी एक नीति के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मूल्य नहीं जुड़ा हुआ है। जब नीति के साथ मूल्य जुड़ जाता है तब उस नीति का मूल्य बढ़ जाता है, या नीति है वह सुनीति कहलाती है। और दूसरी नीति है वो अच्छी नीति। हम देखते हैं कि हम कोई भी अच्छे कार्य को करते हैं तो एक अच्छे मार्ग से, सत्य के मार्ग से, धर्माचरण के मार्ग से करते हैं, तो वह कार्य है वह हमारे जीवन के विकास के लिए होता है। वो चोर वाली नीति है, वो आपको कारावास, जेल में भी डाल सकती है, लोहे के सलाखों के पीछे आपको कैद कर सकती है, लेकिन यह नीति है, यह आपको मुक्त करती है, वो बंधन में डालेगी, और यह नीति है, यह आपको मुक्त करेगी। दूसरा शब्द है मूल्य। मूल्य के विषय में तो एक पूरा व्याख्यान चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से हम कहें तो मूल्य क्या है, तो के मूल्य जो मूल में स्थित होता है। गुण एक भी शब्द है, पर लेकिन गुण और मूल्यों के मध्य में भी तात्विक भेद है। जो गुण शाश्वत हैं, जो गुण दो प्रकार के हैं, एक तो अपनी उन्नति के भी साधक हैं और लोक कल्याणकारी भी हैं। ऐसे दो प्रकार के गुणों से युक्त जो कार्य होता है उसको हम मूल्य कहते हैं। मैं यदि स्वयं व्यायाम करता हूं तो वो मेरा गुण है, लेकिन मेरे नियमित व्यायाम से लोग प्रेरणा लेकर यदि व्यायाम करने में प्रवृत्त होते हैं, मैं स्वयं अध्ययन करता हूं लेकिन मेरे साथ जुड़ने वाले सभी लोग अध्ययन करते हैं उससे, तो वह मूल्य इस संज्ञा को प्राप्त करता है, ऐसा मेरा विचार है। और बहुत सारे विद्वानों ने भी इसके संदर्भ में बात की है कि मूल्य है वो हमारे अंतर जगत से जुड़ा हुआ तत्व है। मैं जब मानवीय मूल्यों के या जीवन मूल्यों के संदर्भ में पढ़ रहा था तो एक आपको इंटरेस्टिंग जानकारी भी इस संदर्भ में देना चाहूंगा कि एक मानव मूल्य परक शब्दावली का विश्वकोश प्रकाशित हुआ है भारतीय संस्कृति संस्थान चंडीगढ़ से। मैंने वैसे ढूंढने का प्रयत्न किया कि नीति शतक में कितने जीवन मूल्य हो सकते हैं, तो यदि आप गिनना चाहेंगे तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो ऊपर दृष्टि से देखने पर 70 से 100 के बीच में हम नैतिक मूल्य, वहां पर मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हर एक श्लोक में कोई ना कोई एक मूल्य छिपा हुआ है। तो प्रत्येक श्लोक का एक भी मूल्य ले लें तो हमें वहां पर 100 मूल्य निश्चित रूप से हमें मिलेंगे। कहीं पर मूल्यों की समानता भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें पार्थक्य है। वह दृष्टि हमें नीति शतक को जब एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ेंगे तब आपको उसका ज्ञान होगा। तो वो जो मैंने कहा था कि पारिभाषिक जो विश्वकोश है, मानव मूल्य परक शब्दावली का विश्वकोश, उसमें मैंने कहा कि जीवन मूल्य की संख्या कितनी हो सकती है, मैं देखने का मैंने प्रयत्न किया। वो 5 भागों में वो विश्वकोश प्रकाशित हुआ है और एक एक
मानवीय मूल्य पर लगभग 250 से 300 विद्वानों ने उसका बहुत अच्छा निरूपण किया है। और महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, चाणक्य नीति, नीति शतक, सुभाषित रत्न भांडागार, कालिदास के काव्य आदि बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिल जाएंगे जिनमें जिनके वहां पर उद्धरण आपको प्राप्त होंगे। तो बहुत वो पठनीय एक है। उसमें कुल मिलाकर 755 मानवीय मूल्यों की एक क्रमणिका दी गई और उनका निरूपण किया गया है। तो किसी ने प्रयत्न किया कि मानवीय मूल्य कितने हैं, तो मानवीय मूल्यों की संख्या उन्होंने 755 दिखाने का प्रयत्न किया है। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो और भी बहुत सारे मानवीय मूल्य हमें प्राप्त होंगे। इस मानवीय मूल्य और नीति को हम इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मूल्य है वो मूल में रहता है। किसी भी, यदि आप वृक्ष है तो उसका मूल है, उसको पोषण करना आवश्यक है। तो उसको परिपोषण करने के लिए हमें किसी न किसी नीति का आश्रय लेना पड़ेगा, यानी उसमें जल देना पड़ेगा, उसमें उर्वरा खाद देना पड़ेगा और समय समय पर उसको खोदते रहना भी पड़ेगा। कीटकादि से वह वृक्ष आहत न हो जाए, वृक्ष खराब न हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो जो उसके लिए किया जाने वाला कर्म है वो नीति है। और उसके माध्यम से अब देखिए नीति है ना, मैंने कहा था वो दो पक्ष है, तो उसको यहाँ इस संदर्भ में भी समझना चाहिए कि जैसे वृक्ष को हम विष से सिंचित करते हैं तो वो कालांतर में विष वृक्ष का रूप ले लेगा। और यदि हम अच्छे जल से, अच्छी उर्वरा से उसको सिंचित करेंगे तो वह वृक्ष है, वह अच्छे पुष्प देगा, अच्छे फल देगा, अच्छी छाया देगा, उसके माध्यम से अच्छा पवन, कहते हैं कि ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होगा। तो यह जो वृक्ष है वो हमारा जीवन है या हमारा समाज है। तो नीति के द्वारा जो मानव मूल्य को हम परिपुष्ट करते हैं, उस परिपुष्ट किए हुए मूल्य से हमारा जीवन और समाज वो प्रभावित होता है। और यही नीति शतक या नीति काव्यों की प्रासंगिकता है। अब मैं इसको जो तीसरा मेरा जो दृष्टिकोण है उस संदर्भ से आपको मैं समझाना चाहूंगा। उससे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको मानव मूल्य क्या होता है वो स्पष्ट हो जाएगा। एक गुरु के पास एक शिष्य जाता है और पूछता है कि इस मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। गुरु कहता है कि सांसारिक पदार्थों का मूल्य ही लगाओ, वही अच्छा है। यह मानव का मूल्य लगाना किसने सिखा दिया? ये व्यापारी वृत्ति आप में कहां से आ गई? ये भौतिकता का तो परिणाम नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसका वास्तव में मूल्य क्या है। वो गुरु भी गुरु ही होते हैं, वो सामान्य रूप से प्रवचन के माध्यम से सिखा सकते थे, लेकिन उसको अनुभव के माध्यम से सिखाना चाह रहे थे। तो उसको एक सुंदर एक पत्थर, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई मणि, उसको देते हैं और कहते हैं कि आप इस मणि का मूल्य बाजार में पता कराइए, लेकिन आपको एक काम करना है, इस मणि को आपको बेचना नहीं है, किसी को देना नहीं है, आपको वापस लाना है। शिष्य भी जिज्ञासा वृत्ति उसकी इतनी वेगवान थी, वह जाता है और सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है, संतरा वाला होता है। संतरा वाला जो संतरे बेच रहा होता है वो कहता है कि इस प्रस्तर का, इस पत्थर का मूल्य क्या है, आप बताइए। अब जो सब्जी वाला है वह उस हीरे को नहीं पहचान पा रहा, लेकिन उसकी चमक थी उसको आकर्षित कर रही थी। उसने कहा कि ये लीजिए 15-20 मेरे पास संतरे हैं, इस संतरों को आप रख लीजिए और यह पत्थर मुझे दे दीजिए। वो कहता है मैं पत्थर तो नहीं दे सकता क्योंकि गुरु ने मुझे मना किया है। तो वो पता करके कि चलो इसका मूल्य 20 संतरे हैं। अब वो किसी सब्जी वाले के पास जाता है, थोक विक्रेता होता है, वो उसके पास कहता है इस पत्थर का मूल्य क्या है। वो देखता है, वो भी थोड़ा सा आकर्षित होता है और कहता है कि इसका मूल्य है 100 किलो आलू, यह एक आलू की बोरी है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए और यह पत्थर मुझे प्रदान कर दीजिए। तो वो जो
है वो कह रहा है कि नहीं, मैं इसको आपको नहीं दे सकता, लेकिन मुझे मूल्य पता चला कि 100 किलो आलू इसका मूल्य है। अब एक सुनार के पास जाता है, वह कहता है 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। देखकर वो कहता है समुचित नहीं, मुझे उदाहरण। नहीं देना है। तो वह कहता है कि नहीं, 2 लाख इसका मूल्य है, आप ले लीजिए सोना, समुचित उदाहरण। और आप उसको ग्रहण कर लीजिए कि ये 2 लाख रुपए लेकर यह मणि मुझे दे दीजिए। तो वो कहता है नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। अंत में वो एक जौहरी के पास जाता है और जौहरी कहता है, बालक, यह पत्थर नहीं है, यह कोई सामान्य मणि नहीं है, यह तो पारस मणि है, इसका कोई मूल्य नहीं आका जा सकता। समग्र संसार का ऐश्वर्य, समग्र संसार की संपत्ति आपके समक्ष हम रख दें, तब भी इस पत्थर का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, यह अमूल्य है। शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि इस तरह उन्होंने अलग अलग मूल्य प्रस्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अब मनुष्य के ऊपर आधारित है वह अपने जीवन का मूल्य क्या लगाता है। क्या वो संतरे के भाव में अपने जीवन के मूल्यों को प्रस्थापित करता है, आलू के बोरी के रूप में, सोने के रूप में, या अमूल्य के संपत्ति के रूप में अपने जीवन के मूल्यों को वह जीवन में धारण करता है। तो उसको ज्ञान होता है और वो जो शिष्य है उसकी जिज्ञासा वृत्ति है वो ऐसी शांत हो जाती है और उसको पता चलता है कि निश्चय में जीवन का मूल्य है वह अमूल्य है, जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। और न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, ऐसा तो महाभारतकार भी कह रहे हैं। तो मनुष्य है वह इसका समुचित धारण, इन गुणों का आधान अपने अंदर कर सकता है। नीति शतक के संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो हमें मूल्यों को निर्धारित करना है कि हम किस सुभाषित में क्या मूल्य उसका निर्धारित कर रहे हैं। हमें क्या संतरे उनमें से प्राप्त करने हैं या जीवन जीने का पाथेय प्राप्त करना है, यह भी एक विचारणीय और ध्यातव्य बिंदु है। नीति शतक को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जैसे मूल्यों के सामान्य रूप से हम 5 विभाग करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, धार्मिक मूल्य होते हैं और नैतिक मूल्य होते हैं। इन 5 मूल्यों में हम अपने जीवन को भी समेट सकते हैं। नीति शतक को आप कई दृष्टि से देख सकते हैं। आप उसको 4 पुरुषार्थ के रूप में भी नीति शतक के श्लोकों को विभाजित कर सकते हैं। धर्म के श्लोक आपको अलग मिल जाएंगे, अर्थ, काम और मोक्ष के श्लोक। उसी तरह आपको वर्ण के आधार पर भी आप उसका विभाजन कर पाएंगे। आश्रम के आधार पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के भी आपको अलग अलग श्लोक प्राप्त हो जाएंगे। षड्रस के स्वरूप में भी आप उनका वैभिन्य आप उसको प्रतिपादित कर सकते हैं। नवरसों के रूप में भी उसका एक अलग आप श्लोकों को, मुक्तकों को नव रसों के संदर्भ से भी देख सकते हैं, षड ऋतुओं के संदर्भ से देख सकते हैं। अपनी अपनी दृष्टि हो, उस आधार पर हम नीति शतक को देख पा रहे हैं और नीति शतक को हम समझ पाते हैं। मेरा जो मुख्य है वो निरुक्त की दृष्टिकोण से इस नीति शतक को देखना रहा है। निरुक्त में जो षड्भाव विकार हैं, संस्कृत के जो अध्यापक हैं वो तो इस षड्भाव विकार से सुपरिचित हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं या संस्कृतेतर विषय के हैं उनको यह एक नया लगेगा कि षड्भाव विकार उन्होंने बताया है। मनुष्य की 6 अवस्थाएं होती हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यत इति। इन 6 अवस्थाओं के माध्यम से हम नीति शतक के श्लोकों को विभाजित करें तो एक हमें नया दृष्टि कोण प्राप्त होगा। सबसे पहले जो मंगलाचरण में मैंने मंगलाचरण श्लोक ही नीति शतक का कहा था, तो नीति शतककार वह अनंत, शांत और तेजस स्वरूप पर ब्रह्म को प्रणाम करते हुए अपने निजी शतक का प्रारंभ करते हैं और वो कहते हैं कि
यह जो सुभाषित है वो किन के लिए योग्य नहीं है। बहुत सुंदर शब्दों में उसकी उन्होंने एक श्लोक के रूप में उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। मैं आपको श्लोक का भी एक रसास्वादन कराऊंगा। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। जो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, स्वयं को विद्वान समझने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। ईर्ष्या से ग्रस्त होने के कारण वो सुभाषित को समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, वहां पर दोषान्वेषी उनकी वृत्ति हो जाती है, क्योंकि जब ईर्ष्या करता है तो उसको परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता कियंता, यह नीति श्लोक नहीं उनको ध्यान में आता, लेकिन उसमें दोष वो ढूंढते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले ज्ञानवान बनना है, लेकिन मत्सर ग्रस्त नहीं होना है। ईर्ष्या रहित हमें होकर किसी भी चीज को ग्रहण करने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। दूसरा, प्रभवस्मय दूषिता। कौन सुभाषितों का स्वाद नहीं ले सकते हैं? जो धनवान लोग हैं, क्योंकि स्मय दूषिता, वो अपने मद से, अपने अहंकार से वो भरे हुए हैं। देखेंगे आप भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े धनवान आते हैं, लेकिन अपना व्याख्यान या अपनी जहां पर जरूरत होती वहां पर उपस्थित रहकर वो चले जाते हैं। क्या उनको, हाँ, कार्य का अतिरेक उनको बाधित करता है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अहंकार भी उनको कहता है कि नहीं, मैं अपने को इतना सुलभ बना दूंगा तो मेरी वैल्यू, मेरा मूल्य नहीं रह जाएगा। तो वो स्मय दूषिता, अहंकार से भरे हुए धनवान भी इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और अबोधोपहताश्चान्य, और जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो क्या, जो समझने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। आप जिसको लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन, और उसके बाद उन्होंने विवेच्य मृग तृष्णुकासु सलिलम। हेलो, मृग तृष्णिका से जल प्राप्त हो सकता है, और विषाण यानी कि खरगोश भी कहीं भटकते मिल सकता है, लेकिन मूर्ख जन को हम नहीं समझा पा रहे हैं। तो ऐसे जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए जीर्णम अंगे सुभाषितम। अंग में ही, अपने ही कवि के अपने ही अंग में, अपने ही शरीर में, अपनी ही वाणी में वह सुभाषित, वो जीर्णम, बूढ़ा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इनको दृष्टि देखना है। तो अस्थि, जो पहला इसका जो षड्भाव विकार का जो पहला विकार है, अस्थि के संदर्भ में हम इसको देखेंगे। जायते, सॉरी, सबसे पहले जायते है, मनुष्य उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न होने से पहले भी उसकी प्रक्रिया होती है। वो होते हैं उसका सूक्ष्म शरीर, और उसके जो किए हुए कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में उसको इस जन्म में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उसको जीवन सार्थक करने के उन्होंने कुछ उपाय प्राप्त बताए हैं, जैसे जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविश्वरा नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। हम इसको भर्तृहरि के संदर्भ में ही देख लें तो भर्तृहरि आज से 1300 वर्ष पहले हो गए, लेकिन आज भी हम उसको याद करते हैं। ऐसा लगता है कि भर्तृहरि हमारे ही कहीं बीच ऋषि रूप में विचरण कर रहे हैं। यह कैसे होता है? क्योंकि वह यशा शरीर से वह जिंदा हैं। तो हमें भी ऐसे कुछ सुकृत अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी कृतियां करनी है, अच्छा साहित्य से जुड़े हुए हैं तो कुछ साहित्य ऐसा करना है, कुछ गवेषणा ऐसी करनी है कि हम लोक को दे पाए कुछ, और हमारे जीवन को भी सार्थक बनाते हुए हम परलोक को भी हम सार्थक कर पाए। तो यह जो जायते है उसमें हम इस श्लोक को बद्ध कर सकते हैं। और परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते सजातो
ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, जिससे उसका वंश कुल समुन्नति को प्राप्त होता है, उसका ही जन्म लेना सार्थक है। इस श्लोक में परिवर्तनशील संसार की बात बताई। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति, भाग्य पंक्ति की समान यह संसार तो परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे माध्यम से हमारा वंश को थोड़ा व्यापक रूप में लें तो हमारा राष्ट्र यदि उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो हमारा जन्म लेना सार्थक है। तो जायते के संदर्भ में यह हम ले सकते हैं। और एक हंस का उदाहरण बहुत सुंदर वहां पर दिया है। अंभोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता नत्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तु मसौ समर्थ। ब्रह्मा है, हंस का वन में विचरण कराना छोड़ सकता है, लेकिन उसको जो जन्मजात प्राप्त हुई विद्या है कि निरक्षर विवेक, पानी और दूध को भिन्न करने का, उनका भेद ज्ञात करने की जो कला है, वह उसको उनसे कोई नहीं छीन पाता। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस जन्म लेने के साथ साथ उसके कुछ विचार, उसके कुछ मूल्य उसके जीवन में उतरने चाहिए, जिससे उसका जीवन है वो सुखमय बन जाता है। दूसरा हम लेंगे अस्थि। अस्थि यानी मेरे में क्या है। हम कहते हैं ना कि परम पिता परमात्मा ने सबको समान बुद्धि दी हुई है, लेकिन हम यदि बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वह बुद्धि निरर्थक है। तो बुद्धि विषयक जितने श्लोक हैं वो हम अस्थि वाले इस विकार में, अस्थि वाले भेद में हम ग्रहण कर पाएंगे। जैसे वो यदा किंचित ज्योहम द्वीपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्योस्मि इत्यभवदवलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुध जन शकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मि इति ज्वरैव मदो में व्यपगतः। हमारे में बहुत कुछ ज्ञान होता है, लेकिन यह ज्ञान है ना, वह तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य कभी भी अपने को ज्ञान से परिपूर्ण नहीं कर पाता, लेकिन वह यात्रा है, वो उसको प्रारंभ करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे कुछ जानना है, मुझे अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। और यह कब होता है? जब वह कुछ जानने लगता है, थोड़ा थोड़ा जान लेता है, विद्वानों का समागम करता है, तब उसको ज्ञात होता है कि अहम मूर्खः अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। लेकिन मूर्ख बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। कल ही एक सुभाषित में हमने इस विचार को प्रस्तुत किया था कि यदि आप अज्ञानी हैं, यह आपको ज्ञान होता है, पर ज्ञान होने के लिए भी आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी यह अनुभूति होगी। और शायद बहुभूति को अनुभूति हुई होगी, क्योंकि राजा के सारे ऐश्वर्य भोग कर वह जब वैराग्य शतक की बात करता हो, नीति शतक की बात करता हो, तो उसको जीवन की असारता और जीवन की सारता कहाँ है, उसका भेद उसको प्राप्त हुआ होगा। और वही भेद को यहाँ पर विवेक के अर्थ में प्रस्तुत किया है। गंगा जी का उदाहरण देकर उन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुत किया है। शिरः सार्वम स्वर्गात का जो अंतिम पद है, मैं पूरा श्लोक नहीं बोलना चाहूंगा, समय भी हो रहा है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख। मनुष्य कब विनाश की ओर जाता है? जब वह विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। और यह विवेक है, यही विवेक का ज्ञान है। कर्तव्य कर्तव्य, धर्माधर्म, विधि निषेध, और क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, शुभ अशुभ, श्रेय प्रेय, विद्या अविद्या आदि समस्त मार्ग हैं, वो हमें यह नीति शतक है, उसके श्लोक, उनके मुक्तक हमें कहीं न कहीं बोध प्रदान करते हैं। तो अस्थि के संदर्भ में भी केयूराणि न भूषयन्ति इत्यादि बहुत सारे श्लोक हम ले सकते हैं। फिर आता है विपरिणमते। हमारे पास जो है, लेकिन उसका विकार यानी उसका हमने कुछ प्रेषण, हमने उसको कहीं किसी रूप में परिवर्तन नहीं किया, तो उसका जो प्राप्त करना है वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वो कहता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म
ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह जो 7 मूल्य है ना, इन मूल्यों को भी आपने जीवन में प्रस्थापित कर दिया। ये जीवन जीने के 7 अंग हैं। जैसे योग के अष्टांग है ना, तो मुझे ये लगता है कि ये जीवन मूल्यों के ये सप्तांग हैं, और यह सप्तांग यदि हमारे जीवन में आ जाएंगे तो विद्या यश येषां न विद्या न यशो येषां न विद्या न तपो न दान प्राप्त हुई विद्या होगी तो वो विद्या सार्थक होगी। यदि आप लॉकडाउन के समय में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ जाना हुआ है, लेकिन आपने तपस्या नहीं प्राप्त की, तपस्या नहीं की अपने जीवन में, तो वह तपस्या के कारण आपको कहीं ना कहीं मानसिक, शारीरिक इत्यादि आपको दुख प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर एक लॉकडाउन के संदर्भ में भी मुझे एक बात आपके समक्ष प्रस्तुत करनी थी, यह कि क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः। शल्योदन रुचिः, हाँ जी। क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। हाँ, न च दुःखम न च सुख न च दुःखम न च सुखम। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमें मनस्वी यानी अपने अंतःकरण को भी अंतःकरण से भी हमें चिंतन करना है कि हम इस समय में हमें जो प्राप्त है उस प्राप्त से हमें संतोष प्राप्त करना है। संतोष यदि हमें उससे है तो हम घर की इस समय सब्जी नहीं मिल रही है बाहर, तो हम घर की दाल खाकर भी प्रसन्न हैं। कपड़े भी अच्छे अच्छे नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन घर के जो अनुकूल वस्त्र हैं वो भी हमारे लिए किसी राजा के वस्त्र से कम नहीं है। यह हमें लॉकडाउन के संदर्भ में भी सीखना है। और दूसरा, एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वास पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। ये कोई ऑप्शन नहीं दिया है हमें, लेकिन स्थिर चित्त होना दर्शाया है। यदि हमारा चित्त स्थिर है तो हमें केशव मिले या शिव मिले, हमें कोई सन्यासी मित्र के स्वरूप में प्राप्त हो या राजा मित्र के रूप में प्राप्त हो, हमें यदि कोई नगर में रहने को मिले या किसी हम कुटीर में रह रहे हैं, इस तरह हमें जो कुछ प्राप्त है उसमें अपनी चित्त को एकाग्र करना, स्थिर करना, यह नीति शतक हमें लॉकडाउन के संदर्भ में सिखा रहा है। और नीति शतक का यह एक श्लोक, जैसे मैं जो 12वीं का श्लोक है, सहसा विदधीतन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपद, यह जो श्लोक है उसके माध्यम से आपको पता होगा कि एक परिवार है, वह पिता अपने पुत्र का वध करने जा रहा था, पत्नी का वध करने जा रहा था, लेकिन एक सुभाषित ने उसको बचा लिया। उसी तरह नीति शतक का यह श्लोक है, यह सुभाषित है, वह यदि हमारे कार्यालयों में, न्यायालय में, संसद भवन में, विधानसभा में और जितने भी हमारे कार्यस्थल हैं, यदि यह भी हमारे समक्ष, नजरों के समक्ष हमेशा रहे तो हमें यह सुभाषित बहुत कुछ सिखा जाता है। निंदन्तु, वह सुभाषित है यह, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। आप जिस न्याय के मार्ग पर, जिस आप कार्य के मार्ग पर, जिसके लिए आपका चयन हो रहा है, आप यदि सांसद हैं, आप यदि मुख्यमंत्री हैं, आप यदि कोई विधायक धारासभ्य हैं, आप यदि कोई शिक्षक हैं, आप यदि कोई सरकारी अधिकारी हैं, यदि आप कोई शिक्षक हैं, यदि आपका न्याय मार्ग आपसे अलग हो रहा है तो आप मानव कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि मानवीय मूल्यों के बिना यह शरीर मात्र और मात्र हाड़ पिंजर है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन।
पशुओं के समान हमारा जीवन नहीं जीना है, न्याय के मार्ग पर हमें चलना है, तो यह सुभाषित इतना उपयोगी है। और अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे सुभाषित हमको बचाते हैं। काका कालेलकर जी 3 बार आत्महत्या करने जाते हैं और उनको किसी ऐसे ही नीति शतक जैसे ग्रंथ का सुभाषित स्मरण आता है और वो चल पड़ते हैं कि यार ये सुभाषित अभी स्पष्ट नहीं हुआ, यह वचन मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है, मैं एक बार देख लूं फिर आके मर लूंगा। ऐसा 3 बार करते हैं और वही जिज्ञासा उनको जिजीविषा, जीने की क्या कहते हैं, इच्छा तक ले जाती है। तो हमारी जीवन यात्रा है वो 3 इच्छाओं में समेट कर होनी चाहिए, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। यह तो ऐषणाएं हमारे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमें जो अच्छी ऐषणाएं लेनी है, जो नैतिक संदर्भ में ऐषणाएं ग्रहण करनी है, तो वो लेनी है हमें जिज्ञासा, जिजीविषा और जिगीषा। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, हमेशा हम ज्ञानवान बनने का प्रयत्न करें। और कब होगा? सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। ज्ञानवान के तो बहुत सारे माध्यम हैं, पुस्तक के माध्यम से ही ज्ञानवान हो सकते हैं ऐसा नहीं है। आप किसी अच्छे पुरुष का संग करेंगे, ऐसे अच्छे आयोजनों से भी आप जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 1-2 बात तो आपके जीवन से प्रस्तुत यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उस तरह दूसरा हम देखते हैं कि जिजीविषा, जीने की इच्छा। ये सुभाषित हमें जीने की इच्छा भी जगाते हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु है वो 100 वर्ष है और इसमें भी 100 सुभाषित है। एक सुभाषित एक वर्ष में भी हमने अपने जीवन में उतार दिया तो हम नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम वाले स्टेज पर पहुंच जाएंगे। नरत्व से हम मनुष्यत्व से देवत्व की और हमारा प्रस्थान होगा। और तीसरा है जिगीषा, मात्र जीना नहीं है लेकिन जीतना भी है। मुझे इस संदर्भ में बहुत एक अच्छा वचन याद आता है, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या तो फिर सीखता हूँ। तो हमें जीतने का भी प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन वही है कि एक ही विजेता होता है, लेकिन हम जीतने का प्रयत्न करते हैं, जिज्ञासा हमारे अंदर है, तो एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। और ये कोरोना के समय में भी हमें ये तीनों इच्छाएं पूर्ण रूप से अपने अंदर विकसित करनी है। नीति शतक की दृष्टिकोण से हमें वर्धते अपक्षीयते के संदर्भ में भी हमें ग्रहण करना है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्रगम्य। यहाँ पर जो सेवारत है कोरोना के समय में, उसके लिए कितना बड़ा कठिन कार्य है सेवा करना। आप इस श्लोक के अर्थ को एक बार समझने का प्रयत्न करिए। आप सेवक बनना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन आप बनेंगे तो आपकी सेवा का सब जगह बखान होगा। हनुमान जी को ले लीजिए, हनुमान जी को हम सच्चे सेवक के रूप में मानते हैं, और जब हम सेवा की बात करते हैं तो हनुमान जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने सब कुछ सहन करते हुए सेवक जो अपना सेवा का जो गुण है, परोपकार का गुण है, वह नहीं छोड़ा। उस कारण से देखिए वो भी अमर हैं। इसी तरह जितने भी अच्छे महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ले लीजिए, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम जी, अभी मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, बहुत सुंदर अगनपंख है, वो भी पढ़ने लायक है। तो नैतिक विषय है, आपको सब जगह से मिल जाएंगे, लेकिन नीति शतक के संदर्भ में हम उसको यदि ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो हमें श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग दोनों की प्राप्ति होगी। और अंत में यही कहूंगा कि जैसे गीता अध्यात्म जगत का गीता प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी तरह व्यवहार जगत का कोई ग्रंथ हो तो वह नीति शतक है। और उसी नीति शतक के माध्यम से हमें अपने जीवन को जीना है। नीतियों के माध्यम से हमें अपनी जीवन रीति बदलनी है, और रीति भी ऐसी हो कि अच्छे लोगों की हमसे स्मृति बनी रहे और हमारी और आपकी स्मृति आजीवन बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नीति शतक के संदर्भ में मैंने कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना है। शायद मेरा जो गूढ़ार्थ था, मेरा जो निहितार्थ था, मुझे जो
मेरा जो भाव था वो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो अच्छे मूल्य हैं वो अच्छे मूल्यों की प्राप्ति में हमें अपने जीवन को लगा देना चाहिए। और जब हम अपने जीवन को लगा देते हैं तो हमारा जीवन है वो पुष्पों की तरह सुगंधित बन जाता है, सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाता है, चंद्रमा की तरह वह सभी को शीतलता देता है और जल की तरह शांति प्रदान करता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सुख, समृद्धि और शांति, यह तीन हमको इन नीति ग्रंथों के अनुसरण से, आचरण से, अपने जीवन में उतारने से और अपने जीवन को सार्थक बनाने से प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी बातें आपसे मुझे करनी थी, लेकिन समय की भी एक मर्यादा होती है और उस समय को भी ध्यान में रखते हुए आप भी अपने बहुत सारे कामों को छोड़कर इस व्याख्यान को सुन रहे हैं। आपका भी खूब आभार मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सुनना बहुत कठिन होता है और अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता बन जाता है। तो आप सुन रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको मिली होगी इन्हीं आशा के साथ। पुनः आपका धन्यवाद और आयोजकों का विशेष धन्यवाद मैं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः, धन्यवाद। हेलो, सरकारी विज्ञान कॉलेज बायड द्वारा आयोजित नीति सशक्तમાં जीवन मूल्य ये विषय पर आज विद्वान एवा श्री डॉक्टर भावप्रकाश दादी साहेब द्वारा जे आपने खूब ज सुंदर मजानो व्याख्यान 100 श्लोक जे आपने शिखाड़ी तो लगभग दरेक श्लोक के 100 वर्ष जिल्ला विकास हेलो बोल सरस कोरोना समय में दरेक मानव समय પડકાર મનુષ્ય વિશ્વ સંગઠન પડકાર છે એવા સમયમાં જે આજે અમૂલ્ય એવું સમાધાન हेलो તમારો અવાજ નહીં આવતો. हेलो, कॉलेज वती पण હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અન્ય કોઈ મિત્રોને પણ કદાચ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. કદાચ એક સાથે સ્વીકાર નહીં કરતા વન બાય વન કોઈ પણ મિત્રને પ્રશ્ન હોય તે પૂછી શકે છે. आपका कोई प्रश्न हो तो आप सादर पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं दिलीप त्रिवेदी। हाँ जी। मुझे एक प्रश्न है। सुभाषित है, एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वाचः पत्ने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा धनिया। इस श्लोक में मुझे 3 चरण समझ में आ गया। अंतिम चरण है वो समझ में नहीं आता है। अंतिम चरण का गूढ़ार्थ क्या है वो मैं समझना चाहता हूँ। माने आपकी जो नारी पत्नी है वो सुंदर हो या गुफा वाली हो, माने जो यति होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो अपने दरी यानी गुफा से ही वो अपने क्या कहते हैं जीवन को निर्वाह करते हैं। तो बस वही है कि आपके पास यदि सुंदरी हो या आपके पास गुफा रूपी भी कोई नारी हो तो उसमें भी आपको स्थिर मति रखना है। आपके पास जो चीज है उससे संतोष प्राप्त करना है। ज्यादा आपको अपने मन को विचलित नहीं करना है, स्थिर चित्त रहना है। यह चौथे पद का गूढ़ार्थ है। हाँ जी, धन्यवाद। બીજા કોઈ મિત્રોને 5 મિનિટ આપણી પાસે છે. હેલો, 5 મિનિટ આપણી પાસે છે. કોઈ બીજા મિત્રોને પણ કઈ પ્રશ્ન હોય તો અહીંયા પૂછી શકે છે પ્રશ્નોત્તરી. गुरुजी नमस्ते. हाँ जी, हरिओम. हेलो. हाँ जी, आप कोई एक पूछ सकते हैं। हाँ जी गुरुजी नमस्ते, आकाश पुरोहित. हाँ जी. ગુરુજી મારે એ પ્રશ્ન છે કે મને બધું જ સમજાઈ ગયું છે આમાં, પણ તમે એક વાત કરી હતી જે કાકા કાલેલકરનો તમે જે પ્રસંગ કીધો હતો કે જે 3 વખત આત્મહત્યા કરવાની જે ઈચ્છા રાખે છે ને બધું ઓલું પ્રયત્ન કરે છે પણ શ્લોકની જાણવાની ઈચ્છા રાખે છે વળી પાછા આવી જાય છે. તો ગુરુજી મારે એ જાણવું છે એમાં કે એ પ્રસંગ કયા પુસ્તકમાં છે તો હું પુસ્તકનો સંદર્ભ ગ્રંથ ટાંકી શકું. એ પુસ્તકનું મને ધ્યાન નથી, પણ જ્યારે વાંચે ગુજરાત અભિયાન ચાલતું હતું ત્યારે મેં આ જે કાકા સાહેબ
વાળો જે પ્રસંગ છે એ સાંભળ્યો હતો. એ શ્લોકના સંદર્ભમાં નથી, પણ કોઈના કોઈ વચન, કોઈના કોઈ ગ્રંથનું વાક્ય એમને સ્મરણ આવે છે. એવા સંદર્ભમાં આ કાકા સાહેબ કાલેલકરની વાત છે. એના પ્રમાણો વિશે હું પૂર્ણ રૂપે હું શું કહેવાય પુષ્ટ નથી કે આ પૂર્ણતયા સત્ય છે કે, પરંતુ આપણને મને આ જ્યારે પ્રસંગ સાંભળવા મળ્યો તો લગભગ આ અભિયાનને ચાલ્યાને પણ 8-10 વર્ષ થઈ ગયા હશે, પણ હજુ પણ એ સ્મૃતિપથ પર મારા છે. એટલે એક બસ આના સંદર્ભમાં વાત રજૂ કરી છે. હોઈ શકે કે આ પ્રસંગ ન પણ હોય, પણ મારા ધ્યાનમાં આ પ્રકારનો કાકા સાહેબ કાલેલકરના નામથી મને આ ઘટના યાદ આવી એટલે આપના સમક્ષ રજૂ કરું. હું આપને જણાવીશ જો મને એ પુસ્તકનો કોઈ સંદર્ભ પ્રાપ્ત થશે. જરૂર ગુરુજી, ધન્યવાદ ધન્યવાદ. મનસુખ પટોલિયા સાહેબ પણ કંઈક આપની વાત રજૂ કરવા માંગતા હતા સર. હેલો. તમે એક સુંદર શ્લોકનું ગાન કરો. હા સર, હા એ મારી ઈચ્છા હતી, પણ સર વિષય એટલો બધો વ્યાપક હતો ને કે વિષયને ન્યાય હજુ પણ નથી આપી શક્યો એવું લાગે. છતાં એક શ્લોકનો સર ગાન કરીશ, કેમ કે નીતિ શતકમાં જુદા જુદા છંદો છે જ. જાડ્યમ ધિયો હરતી મને ખૂબ પસંદ છે શ્લોક, અને ગળે ઉતરી જાય એવા અર્થ સભર આ શ્લોક છે. અને સત્સંગતિ કથય કિન્ન કરો. હા એ જ કહેતો તો આપને. હાજી, હું એ શ્લોક ગાઈને સંભળાવું છું. પટોલિયા સાહેબની જેમ હું ગાયન કલામાં એટલો નિષ્ણાત નથી, છતાં પણ જે કંઈ કાક સ્વરથી કર્કશ સ્વરથી હું સંભળાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ચાડ્યમ ધિયો હરતિ સિંચતિ વાચિ સત્યમ માનોન્નતિમ દિશતિ પાપમપાકરોતિ ચેતઃ પ્રસાદયતિ દીક્ષુતનોતિ કીર્તિં સત્સંગતિ કથય કિન્ન કરોતિ પુંસામ સત્સંગતિ કથય કિન્ન કરોતિ પુંસામ. ધન્યવાદ. પટોલિયા સાહેબ, એક મારી પણ ઈચ્છા છે કે એક શ્લોકનું આપ ગાયન કરો, જેથી અમારા જે શ્રોતાગણ છે આની સાથે જોડાયેલા એમને પણ એક સુંદર એની અનુભૂતિ થાય. આદરણીય પટોલિયા સર. સાચી વાત છે તો મને યાદ નહીં આવે કે અત્યારે તો સર કોઈ પણ એક નીતિ શતક સિવાયનો પણ કોઈ શ્લોક આપ સંભળાવશો તો આનંદ આવશે સર. તો વાંસળી વગાડી દો. હા સર, વંશી વાદનમાં પણ સાહેબની બહુ સરસ સાહિત્ય સંગીત કલા વિહીન. તો આ જે કલા આવડે છે વાંસળીની એ બહુ કારગર હશે સર આપની આ સ્થિતિમાં. મને બધું છે, પણ અત્યારે અહીંયા મારી પાસે નથી ને, અને તમારામાં ભાવે બળ લેવું છે એટલે કેમ સંભળાવું. કોઈ પણ એક સામાન્ય કોઈ પણ અનુષ્ટુપ વાળો પણ સર હોય તો પણ મજા આવે. ઓકે ઓકે ઓકે. કેયુરાન વિભૂષયન્તિ પુરુષં હારાન ચંદ્રોજ્વલા ન સ્નાનમ ન વિલેપનમ ન કુસુમમ હારાન ચંદ્રોજ્વલા. બસ શ્લોકાર્ધ જ યાદ છે, યાદ કરવું પડે. કરોતિ પુરુષમ યા સંસ્કૃતા ધાર્યતે ક્ષીયન્તે કલ્પૂષણં हि સતતં વાગ્ભૂષણં. સુંદર સુંદર, બહુ સરસ. આપ જેવા અગ્રજ આદરણીય અધ્યાપકો મહાકાંતભાઈ જોશી સર અને પટોલિયા સાહેબ અને ઘણા બધા એવા આપણા અધ્યાપકો પણ આની સાથે જોડાયેલા છે. આ એક મેં પણ આપની સમક્ષ પરીક્ષા જ આપી છે. અમને ખૂબ મજા આવી. આપ જ નિર્ણય કરી શકશો, પણ મૂળ છે કે રસાસ્વાદન થાય એ જ મુખ્ય આશય મારો. ધન્યવાદ. ખૂબ મજા આવી. ખૂબ મજા આવી.
જી જી ખૂબ જ સરસ વ્યાખ્યાન ખૂબ અભિનંદન ગાંધી સાહેબ, ખૂબ સરસ. આભાર આભાર વાઘેલા સાહેબ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવું બધું આપણે નવું કરવું જ પડશે હવે. હા બિલકુલ જી, બહુ બહુ સરસ. કોરોનાએ ઘણું બધું શીખવાડ્યું છે આપણને આવું. ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજા પણ આવા સંસ્કૃતમાં થતા રહે એવી આપણે આશા રાખીએ અને બધા મિત્રો એકવાર આવી રીતે જો કદાચ વેબિનાર કરીએ તો આપણા સંસ્કૃત વિષય પણ કદાચ ઓનલાઈન માધ્યમથી બીજા લોકોને જે પહોંચાડી શકીએ. કદાચ જે સંસ્કૃત વિષય સાથે નથી જોડાયા પણ અન્ય સાથે પણ જોડાયેલા છે એ પણ મિત્રોને આપણે જોડી શકીએ એવો આપણે પ્રયાસ કરીએ. ફરીથી હું એકવાર તમામ જે સહભાગી મિત્રો જે આજના વેબિનારમાં જોડાય છે, આજના વિદ્વાન એવા શ્રી ડોક્ટર ભાવપ્રકાશજી આ સમયે જે અમૂલ્ય ફાળો અને સમય આપે છે એ બદલ હું એમનો પણ પોલીસ પરિવાર વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. તમામ મિત્રોને એક બે દિવસમાં કાલે ઈમેલ મારફતે એક લિંક આપવામાં આવશે ફીડબેક એ ભરી અને તમે અહીંયાથી સબમિટ કરશો આપણને ઈ પ્રમાણપત્ર તમામને ઈમેલ મારફતે આપવામાં આવશે. આનો વિડીયો પણ ફેસબુક પેજ પર મૂકવામાં આવશે જેની પર લિંક આપણને ઈમેલ મારફતે મૂકવામાં આવશે. આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો અથવા તો બીજા શેર કરી શકો છો. ઓકે, ધન્યવાદ. સર્વેભ્યો નમો નમઃ. ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ પ્રજાપતિ સાહેબ. પ્રજાપતિ સાહેબ, એક આપણે સર્વે ભવંતુ સુખીથી સમાપન કરીએ તો વધારે યોગ્ય લાગશે, કેમ કે આ સમયમાં બધાને નિરામય કરવી જોઈએ આ વેબિનારના માધ્યમથી એક સંદેશ જાય. મહાકાંત જોશી સાહેબ, આપ સર્વે ભવંતુ સુખીના નો એક સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિત શાંતિ શાંતિ શાંતિ.